Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So today we will revise uh, chapter 2, Writing in the City Life of History. So first we will going to revise the takeaway notes. A great civilization flourished in Mesopotamia around 5000 BCE. एक अच्छा civilization जो है वो मेसोपोटामिया के अंदर फ्लरिश हुआ था यानी फला फूला था 5000 BCE के अंदर. मेसोपोटामिया इज द मॉडर्न इराक. आज के उसमें देखा जाए युग में तो इसका नाम इराक है. Originally, Mesopotamia is a Greek word which means the land between the two rivers. Originally, Mesopotamia का मतलब क्या है? ये शब्द एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दो नदियों के बीच में जो जमीन है वो. Tigris and Euphrates were the two rivers between which the civilization of Mesopotamia flourished. Tigris और Euphrates दो rivers हुआ करती थी जिसके बीच में ये civilization flourish हुई है. Mesopotamia is a flat plain. Mesopotamia क्या है? एक flat plain है. The excavation work started here about 150 years ago. Excavation का काम यानी कि वापस से खोद करके ढूंढना निकालने का काम जो है वो करीब 150 साल पहले शुरू हुआ था यहाँ पे. Sumer region was the lower part of the Mesopotamian civilization. Sumer region जो है वो lower हिस्सा था Mesopotamian civilization का. It was the heart of civilization. ये heart है मतलब एक important रही है जगह इस civilization की. Sumerians were the first to develop a civilization in Mesopotamia. Sumerians वो पहले लोग थे जिन्होंने Mesopotamia के अंदर civilization शुरू किया था. That is why civilization has been named after them. इसीलिए इस civilization का नाम उनके नाम के पीछे ही रखा गया है. That is Sumerian civilization. As per excavations, there were 3 types of cities in Mesopotamia. Excavation के उससे sources से हम जाने तो यहाँ पे 3 तरह की cities थी. They were religious, commercial and royal cities. 3 तरह की cities में थी धार्मिक, commercial और royal cities. Ur, Lagash, Kish और Uruk and Mari were some of the most important cities of Mesopotamian civilization. अब यहाँ पे Mesopotamian civilization के अंदर ये कुछ शहरों के नाम दिए हैं जो important cities हुआ करती थी उस जमाने में. Soil of Mesopotamia was very fertile, but agriculture was threatened because of नेचुरल कॉजेज. वहां की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ थी लेकिन वहां पे खेती बाड़ी को फिर भी खतरा था. वहां पे नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते थे. द क्रॉप्स ग्रोन वर व्हीट, बार्ले, पीज एंड लेंटिल. अब वहां पे जो फसलें उगती थी वो थी व्हीट, बार्ले, पीज और लेंटिल की. Mesopotamian civilization was based on a definite plan. Mesopotamian civilization जो है वो एक proper planning के तहत करी गई थी start, उस पे based थी. There were 3 kinds of slaves that existed in Mesopotamian society. वहां पे 3 तरह के slaves हुआ करते थे, नहीं गुलाम हुआ करते थे. They were war prisoners, children sold by their parents, and those who failed to pay their debt. They will ill-treated. अब वहां पर 3 तरह के जो slaves यानी कि गुलाम हुआ करते थे, उनके अंदर तो वो लोग जो कैदी थे या वो बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स बेच देते थे या फिर वो लोग जो अपना कर्जा चुकाने पे असमर्थ रहते थे उनको गुलाम बना लिया जाता था और उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था. Mesopotamian society consisted of 3 classes. अब Mesopotamian society के अंदर 3 तरह की classes हुआ करती थी जैसे कि that is upper class, middle class और lower class. Ruling class, the nobles and the royal people and the high officials belong to the upper class. Upper class के अंदर जो rule कर रहे हैं वो जो noble हैं या royal people हैं या अच्छे designation पे कार्यरत officials हैं वो सब upper class में आते थे. Members of upper class led a luxurious life. अब upper class के लोग एक luxurious आरामदायक जिंदगी जीते थे. Merchant, traders, landlords, artisans, craftsmen belong to the second class. Second class के अंदर merchants हो गए, traders, landlords, artisans, craftsmen ये लोग आते थे. Slaves belong to the lower caste और lower caste में आते थे गुलाम. Cows, goats, oxen and sheep were the main animals of domestication. घर में पाले जाने वाले जो जानवर थे वो ये थे cows, goats, oxen और sheep. Hammurabi the Great was the ruler of Mesopotamia during the period of 2067 to 2025 BCE. अब Hammurabi जो है वो great ruler रहा है मेसोपोटामिया का. टाइम पीरियड दे ही रखा है. Code of conduct was the greatest contribution of Hammurabi.
अब वहां पर किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट यानी किस तरह से लोगों को रहना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम्मुराबी ने कंट्रीब्यूट की थी। दे वर 282 इन नंबर्स एंड कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे इन्होंने रूल्स बना रखे थे जो कि 282 रूल्स थे और वो हर एक जो चीज है लाइफ की वो कवर कर रहे थे। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया। क्यूनिफॉर्म जो है वो वहां की स्क्रिप्ट हुआ करती थी मेसोपोटामिया की। Mesopotamians had great interest in literature also. अब यहाँ पे इन लोगों को लिटरेचर के अंदर भी काफी इंटरेस्ट था। गिलगामेश वॉज देयर फेमस एपिक। इनका फेमस एपिक जो है वो है गिलगामेश। इट वॉज द वर्क ऑफ उरुक हु वॉज द रूलर ऑफ मेसोपोटामिया इन 2700 BCE। अब ये काम जो है ये उरुक का था जो रूलर रहा था मेसोपोटामिया का 2700 BCE में। Mesopotamians were interested in mathematics too. लिटरेचर के साथ साथ इनको मैथमेटिक्स के अंदर भी काफी इंटरेस्ट था। 60 important numbers have been found in their numerals. 60 important numbers ढूंढे गए हैं इनके numerals के अंदर। Babylonia had an important role in history of Mesopotamia. बेबीलोनिया का एक बहुत ही important role रहा है मेसोपोटामिया के इतिहास में। Temples of Mesopotamia also had much importance in the history of Mesopotamia. यहाँ के जो मंदिर है उनका भी काफी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है वहाँ के इतिहास में। Temples were the centers of religious activities. Temples जो हैं वो अधिकतर सेंटर हुआ करते थे धार्मिक एक्टिविटीज के। These temples were dedicated to different gods and goddesses. ये जो मंदिर बनाए गए थे यहाँ पे ये अलग अलग देव और देवी देवताओं के से रिलेटेड थे। किसी को किसी पॉइंट में भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई सपोज किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इम्पोर्टेंट टर्म्स पे चलते हैं फिर अब। Mesopotamia, the land between the two rivers, it is made of Greek words, mesos meaning middle and the potamos meaning river. ये दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है मेसोस और पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है बीच में और पोटामोस का मतलब होता है रिवर यानी रिवर के बीच में। Division of labor. In the system, each labor person is given a particular part of work in which he is skilled. यहाँ पे काम किस तरीके से बांटा गया था, जो भी व्यक्ति है उसको एक पर्टिकुलर फील्ड का काम दिया जाता था जिसमें वो पूरी तरह से हुनरमंद हो यानी उसको अच्छे से वो आता हो। न्यूक्लियर फैमिली, अ वेरी स्मॉल फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर ये छोटी फैमिली होती है जिसके अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे आते हैं। Cuneiform, the wedge-shaped symbol which represent the syllables and the sound of a word. Cuneiform इनकी स्क्रिप्ट थी जहाँ पे वेज शेप के शब्द जो हैं वो बनाए गए थे जो सिलेबल्स और साउंड बताते थे शब्दों का। Stelis, stone slabs with inscription or carving. Stelis जो है पत्थर के स्लैब्स होती थी जिन पर inscriptions और carvings हुआ करती थी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कंप्लीट हो गए हैं। किसी को कोई दिक्कत? इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने ये इसका रिवीजन कंप्लीट कर दिया है और कल फिर आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे इससे रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।